اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام کو 35 کا ٹیکہ۔ شہباز شریف حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قوم سے خطاب میں کہا، نئی قیمتوں کا فوری اطلاق ہو گیا۔ پیٹرول 249 روپے 80 پیسے اور ڈیزل 262 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ 18 روپے اضافے کے بعد مٹی تیل کی نئی قیمت 189 روپے 83 پیسے اور لائٹ ڈیزل 187 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر اوگرا کے ساتھ قیمتوں کا کم سے کم تعین کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر اوگرا کے ساتھ یہ تعین کیا گیا منیمم پرائس کو انکریز کیا جائے۔ آج اتوار 29 جنوری صبح 11 بجے سے یہ قیمتیں لاگو ہوں گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا۔ کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل آئل میں 18 روپے اضافہ ہوگا۔ اس اضافے کے بعد جو نئی قیمتیں، پیٹرول 249 روپے 80 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل 262 روپے 80 پیسے فی لیٹر، کیروسین آئل 189 روپے 83 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل 187 روپے فی لیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اب تو بس قبرستان کا راستہ ہی بچ گیا ہے۔ کپڑے بیچ کر ریلیف دینے والا وزیر اعظم عوام کے کپڑے اتار رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر عوام برہم۔ لوگ کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف دینے کے بجائے چھین رہی ہے۔ 35 روپے بڑھا کر عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ اس مہنگائی میں عوام کہاں جائیں گے؟ حکومت نے پیٹرول کی مہنگائی کا بم گرا دیا ہے، غریب کا جینا انہوں نے حرام کر دیا ہے۔ یہ 35 روپے بڑھا دیے، غریب عوام اپنے گھر کا خرچہ نہیں پورے کر سکتے، یہ باہر کام کے لیے کس طرح جائیں گے؟ پہلے جو حکومت تھا غالباً کچھ تھوڑا بہت ٹھیک تھا، وہ جب سے چلے گئے ہیں تو یہ آپتا پڑی ہے۔ آٹا دیکھو کہاں پہنچ گیا، صبح سے ہم نے ایک قطرہ چائے نہیں پیا اور پیٹرول کے پیچھے یہ ہماری حالتیں دیکھو۔ یہ ملک تباہ ہوا ہے، انہوں نے پیسے کھائے ہیں سارے۔ اب 35 روپے پیٹرول کر کے لوگوں کے غریبوں کے جیبوں سے نکال کر یہ سب کچھ پورا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی انسانیت نہیں ہے، عوام کو ریلیف نہیں دے رہا، عوام کو ریلیف دینے کے بجائے یہ ان سے چھین رہے ہیں۔ اسی بنیاد پہ ووٹ ملے گی اگر آپ پیٹرول، لوگوں کو آٹا، چینی، ہر چیز میں ریلیف دیں گے تو۔ پیٹرول تو بھائی جان مہنگا ہو گیا، ہم کیا کہیں گے؟ یہ چور جو آئے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ دعا کرے اللہ پاک ان کو دائی دے یا تباہ برباد کرے۔ یہ دیکھیں غریب لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ حیثیت قوم ملک کا تو اللہ حافظ ہے، انہوں نے تو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو ایک قبرستان نظر آ رہا ہمارے کو آخری۔ اب تو یہی ہوگا کہ چوریاں ہوں گی، ڈکیتیاں ہوں گی، لوگ بھوک مریں گے، یہی ہوگا۔ 250 پیٹرول ہے، گاڑی بند کر کے پیدل ہی چلیں گے، غریب بس خودکشی کرے گا، یہی ہے آخری حل، یہی ہے۔ IMF سے آئے دن لے لیتے ہیں قرضہ، یہ بھر تو ہم رہے ہیں۔ شہباز شریف ملک کو ڈبونے کے لیے آیا ہے، یہ کہہ رہا تھا میں کپڑے بیچ کر اپنے ملک کو چلاؤں گا، یہ کپڑے دوسروں کے اتارنے کے لیے آیا ہے۔ غریب مر گیا، غریب کو ادھر رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ غریب آدمی مر جائے گا، آپ کو پھانسی دے گا، عوام میں حال نہیں، عوام اٹھے۔ لاڑکانہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ مہنگائی کے مارے شہریوں نے باغ جناح چوک پر دھرنا دے دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر خودکشی پر مجبور کر دیا ہے۔ لاڑکانہ کے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے قوم کو IMF کا غلام بنا دیا ہے۔ عوام فاقوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہر بار عوام پر بوجھ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ حکمران اپنی عیاشیاں ختم کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ عوام کے ہاتھ حکمرانوں کے گرے بانوں تک جا پہنچیں۔ شہریوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ مجبور کیا ہوا ہے جوانوں کو، 7 لاکھ نوجوان گھر چھوڑ کے چلے گئے، کدھر جائیں؟ یہ کیا اس دن کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی کی ملک کے لیے؟ لاڑکانہ سمیت پورے ملک کی عوام کو نکلنا چاہیے۔ IMF نے ان کو ٹارگٹ دیا ہے 400 روپیہ پیٹرول کریں، عیاشیاں ختم کریں۔ ہر مرتبہ عوام کے اوپر ہی کیوں یہ لوگ بوجھ ڈالتے ہیں؟ یہ عوام بہت بیزار ہے، ان کو ریلیف دے، نہیں تو یہ ہاتھ ہوں گے اور آپ کا گریبان ہوگا۔ جان بچانے والی ادویات نہیں مل رہی، ڈار صاحب سے التجا ہے برائے مہربانی گھر چلے جائیں۔ PTI رہنما یاسمین راشد کہتی ہیں عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے یہ عوام سے بدلہ لے رہے ہیں۔ عوام پہلے ہی سڑکوں پر ہیں، اگر مزید نکل کر سڑکوں پر آ گئے تو آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ سیونگ ڈرگز جن سے جان بچتی ہے وہ دوائیاں اب اویلیبل نہیں ہیں۔ میں ڈار صاحب سے التجا کرتی ہوں کہ مہربانی کر کے آپ
घर चले जाइए। ये आवाम तो ऑलरेडी सड़कों पे हमारे साथ खड़ी है, ये सड़कों पे ज्यादा तादाद आ जाएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा संभालना। आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान का बदला जो है वो आवाम से लिया जाए। जितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं सारों की डेवलपमेंट आके बंद कर दी। तुम जो इंटरिम गवर्नमेंट हो, तुम्हारा काम है सिर्फ चौकीदारी करना, तुम्हारा काम पॉलिसी बनाना नहीं है। एक दिन पहले यकीन का मशवरा, दूसरे रोज़ पेट्रोल हमला। कल पाकिस्तान पहुंचने पर मरियम नवाज ने अपने खिताब में आवाम को इसहाक डार पर यकीन रखने का मशवरा दिया। इसहाक डार ने आज ही आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि पहले अशराफिया से कुर्बानी लेंगे, फिर आवाम से कुर्बानी मांगेंगे। जुमे को एक तकरीब से खिताब में इसहाक डार खुद करार दे चुके हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे है। महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, रोटी महंगी है। साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, बेशक को इस किताब से निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर फैसला ये हुआ है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। केरोसिन ऑयल, लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, हुकूमत वक्त मरा को अपनी मिसाल देनी होगी, उसके बाद आवाम से कहूँगा कि इसमें हिस्सा डालें। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करे, मेरा ईमान है। वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला आप सबको हामी और नासिर हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान का नोटिस लिया जाए। इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास में मुतालबा। PTI ने 4 मुतालबात पेश कर दिए। असद उमर कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक गवर्नर गुलाम अली के बयान पर कार्रवाई की जाए। सदर आरिफ अलवी सियासी मामलात में मुदाखलत रोकें। PDM हुकूमत की वजह से मुल्क दिवालियापन पर पहुँच चुका है। मुल्क की सलामती और हमारा आइन ख़तरे में आ गया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत, सदर मुमलिकत की तवज्जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस बयान के पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जाएगी कि जानिब मबजूल करवाना चाहती है। सदर मुमलिकत से मुल्क की सियासी मामलात में बढ़ती हुई मुदाखलत के फौरी नोटिस का मुतालबा करती है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमात, धमकी आमेज फोन कॉल्स का भी नोटिस लें। इस अंदाज में PDM की इम्पोर्टेड सरकार मईशत चला रही है, मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। हमारी कौमी सलामती पर खतरात के साए गहरे हो रहे हैं। किसी को शक नहीं होना चाहिए, इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है। कल हमारी हियरिंग लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोर्ट ने पंजाब की इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी पिटीशन कल पेशावर हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी। और ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 33 हलकों पर उम्मीदवार इमरान खान होंगे। तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी इजलास में फैसला। मीडिया को ब्रीफिंग में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पंजाब और KP इंतखाबात में ताख़ीर आइन पर हमले के मुतरादिफ है। आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फवाद चौधरी से नारवा सलूक का आज खुद नोटिस लें। इस वक्त हमारा इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। सदर मुमलिकत ने कोशिश की, कामयाबी हासिल नहीं हुई। इंतखाबात के इनकाद में ताख़ीर आइन पर हमले के मुतरादिफ होगा। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जद में आएगी। तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से दहशत गर्दों जैसा सलूक रखने पर शदीद तशवीश का इजहार करती है। एक ही मुकदमे में 3 मरतबा जिस्मानी रिमांड दिए जाने की कोई नजीर इससे पहले दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुल्तमिस है आज खुद नोटिस दिया जाए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की खातिर ज़िमनी इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। तमाम 33 हलकों में हमारे उम्मीदवार चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे। हमारा राब्ता एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त नहीं। सदर पाकिस्तान ने ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले किया, लेकिन उसमें ज्यादा पेशरफ नहीं हो सकी। इस वक्त फवाद चौधरी कहाँ हैं मुझे नहीं पता। जब तक सर्च वारंट और लेडी पुलिस नहीं होगी, कोई घर में दाखिल नहीं हो सकता। एहलिया फवाद चौधरी कहती हैं कि अदालत के हुक्म के बावजूद फवाद को बच्चियों से नहीं मिलवाया गया, जिस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। चीफ जस्टिस सुमोटो ने
और फवाद चौधरी पर तशद्दुद को रुकवाएं। फवाद पे किया जा रहा है, जिस तरह से उनको लाया जा रहा है दहशत गर्दों की तरह कपड़ा डाल के मुंह पे अदालत में, उसकी सख्त मजम्मत की है चेयरमैन साहब ने। बच्चियों को नहीं मिलने दिया जा रहा, रेजोल्यूशन पास की गई है। जज साहब ने कहा कि उनको बख्शी खाने में मिलाया जाए, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलाने दिया गया। सो वी विल बी फाइलिंग अ कंटेम्प्ट इन अपर कोर्ट ऑल्सो। और मेरी अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है कि इसके ऊपर सो मोटो लें और जिस किस्म का ये तशद्दुद फवाद साहब पे कर रहे हैं इसको रोका जाए। अभी तक सर्च वारंट इनको इशू नहीं हुए हैं कोर्ट से। जब तक आपके पास सर्च वारंट नहीं होगा मजिस्ट्रेट का और आपके साथ लेडी पुलिस नहीं होगी, यू कैन नॉट एंटर इनटू द हाउस। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। तेज रफ्तारी जान ले गई। हब के इलाके बेला में मुसाफिर कोच उलट गई, आग लगी और कोच मुकम्मल तौर पर जल गई। 41 मुसाफिर जाँ बहक, 3 मैयतें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले, 38 लाशों को कराची पहुँचा दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके बेला में अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक नाकाबिल शनाख्त लाशों को जिना अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। शनाख्त DNA की मदद से होगी। लाशों और लवाहिकीन के सैंपल्स लेने शुरू कर दिए गए हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। बलूचिस्तान लसबेला में होने वाले अफसोसनाक हादसे में जाँबाक अफराद की मैयतों को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। 38 के करीब लाशें हैं जो नाकाबिल शनाख्त हैं। अब यहाँ पर CPLC की जानिब से हेल्प डेस्क कायम कर दी गई है। घर वालों के लवाहिकीन के DNA सैंपल्स दिए जा रहे हैं। इस हवाले से हम मजीद बात करते हैं जहाँ CPLC की टीम के जो इंचार्ज हैं। प्राइमरी सैंपल डॉक्टर्स ले रहे हैं, टीम मौजूद है। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि इस बस में उनके लवाहिकीन थे, उनके ब्लड रिलेशंस का रिकॉर्ड डाटा इकट्ठा करने के बाद उनका सैंपल ड्रॉ करवाना, DNA दोनों का हो सके, बॉडी का भी और जो उनके ब्लड रिलेशन है, ताकि क्रॉस मैच हो सके। कज़न था, फरीद खान नाम था उसका, तो क्वेटा से आ रहा था। मेरे बेटी का नाम बीबी जीनत है, वो भाई का एक बेटी है, एक बेटा है, एक का नाम मुदस्सिर है, एक का नाम आसिया है। हमारे साथ काम करता था, एक जगह पे बार वाली करता था, होटल पे काम करता था साथ में। वालिद साहब और भाई वो आ रहे, हाफिज़ कुरान था, तालिब पढ़ रहे थे मदरसे में, बाकी वो आ रहे थे जान अपने रिश्तेदार प्रोग्राम के लिए। और अभी इसका फिलहाल ये कह रहे कि 3 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगा, कोई करे 24 घंटे के बाद, कोई अभी पता नहीं है कब मिलेगा रिपोर्ट। अहले खाना की बड़ी तादाद वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, वो भी अपने DNA सैंपल्स दे रहे हैं। 3 मैयतों की शनाख्त कर ली गई थी उनके अहले खाना की जानिब से हादसे के मुकाम पर। वो 3 मैयतों को लसबेला से कोयटा के लिए रवाना कर दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन के अमल में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है, ये कहना है CPLC हुकाम का। इस वक्त भी यहाँ पर जिन अस्पताल में जो इनके अहले खाना है उनके DNA सैंपल दिए जा रहे हैं। जी सलमान आगाह कर रहे थे। बुलेटिन को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कोहाट के तांडा डैम में कश्ती उलट गई। सैर के लिए आए मदरसे के 25 तलबा डूब गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। हुकाम के मुताबिक 17 बच्चों को निकाला गया। 10 बच्चे अस्पताल में दम तोड़ गए। 7 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कश्तीबान और 8 बच्चे ताहाल लापता हैं। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। तलाश का काम कल सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा।